morning students. In the last video we had discussed modals and its uses. In this video we will discuss all the exercises of our grammar book. Let me show you grammar book. This one is our grammar book, and today we will discuss exercise which I had already sent to you in the PDF. We discuss exercise A and B in the video. Yes. Now you all open your grammar books, lesson number 11, modals. We will discuss the exercise first. I will also explain the rules once again in this exercise, and you all must have a pencil in your hand. No one will the exercise with the pen. Now look at the first, fill in the blanks using can, could and be able. हमने ये कल किया था, लास्ट वीडियो के अंदर भी ये डिस्कस किया था. कैन, कुड एंड बी एबल we will use all these modal words to express our ability. According to sentence we will fill dash you play the piano, ability to do something. जब आपको ऑप्शन में गिवन है कि ability to do something, अपनी ability के बारे में बताना है, तो हम इसमें फिल करेंगे can, क्योंकि कैन हम यूज़ करते हैं टू शो द एबिलिटी. सेकेंड सेंटेंस, व्हेन आई वॉज यंग. अब सेंटेंस ध्यान से देखो. व्हेन आई वॉज यंग आई डैश क्लाइंब स्टेयर्स इजीली. स्टेयर्स मीन्स सीढ़ियाँ. बस स्टार्टिंग देखो, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था. और आपको ऑप्शन दी हुई है एबिलिटी इन द पास्ट. जब पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात की जाएगी तो हम यहाँ पे फिल करेंगे कैन का पास्ट. When I was young, I dashed climb stairs easily. I could. Right? Now look at the third. We dash buy the movie CDs rather than stand in the queue for the movie tickets. कि वो कह रहे हैं कि हम सीरीज़ लेना, इसमें जनरल एबिलिटी शो करनी है. इसमें क्या फिल करेंगे हम? We dash buy the movie series rather than stand in queue for the movie ticket. हम टिकट, क्यू मीन्स लाइन, हम टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े होने की बजाय टिकट लेन मूवी की टिकट लेना पसंद करेंगे. आप अब इसमें फिल करेंगे we can buy, हम खरीद सकते हैं बजाय लाइन में खड़े होने के. फोर्थ सेंटेंस, even though our car broke down we dash reach home on time. इसमें जनरल एबिलिटी. पहले स्टार्टिंग में देखो, even though our car broke down. अब broke down मतलब ख़राब हो गई. broke is the second form of break, तो ये पास्ट का सेंस है. इसमें जनरल एबिलिटी हम अकॉर्डिंग टू पास्ट फिल करेंगे. सो वी विल फिल द ब्लैंक विथ could. Next, fifth sentence, as a child she dash paint well. Ability in past. Again past आ गया, तो यहाँ पर हम फिर से could fill करेंगे. Next देखो, she will dash to write with the fountain pen. Ability which is more possible than can. वो ability जो can से ज़्यादा पॉसिबल है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बी एबल टू. अब विल के साथ हम लगाएंगे शी विल बी एबल. शी विल बी एबल टू राइट विद द फाउंटेन पेन. सेवेंथ सेंटेंस, शी सेड दैट शी डैश डांस इवन व्हेन शी वाज 2 years old. एबिलिटी इन द पास्ट. अगेन पास्ट आया हुआ है. और वैसे भी व्हेन शी वॉज 2 years old, जब वो 2 साल की थी, तो इसमें हम फिल करेंगे could. she said that she could dance even when she was 2 years old. Next time, as a young man my grandfather dashed swim really fast. As a young man, ability in the past. Again सिंपल है ये भी कि पास्ट में फिल करना है, तो हम यहाँ पर could लगाएंगे. नेक्स्ट इज हिज राइट लेग इज़ फ्रैक्चर्ड. फ्रैक्चर्ड मीन्स टूट गई, जख्मी हो जाना.
and he will dash to walk without spot only after 3 months. Ability which is more possible than can. Be able. He will be able. Next is sentence number 10. Rather than waiting for him here. Rather than waiting for him here, we dash walk to his house. इसमें जनरल एबिलिटी आएगा. जनरल एबिलिटी के लिए हम यूज़ करेंगे कैन. सो these all are about our first part, that is ability. The modal words we use to express ability: general ability, ability in past, and ability which is more possible than can. जनरल एबिलिटी के लिए हम यूज़ करेंगे कैन, पास्ट के लिए कुड, और जो कैन से कुछ ज़्यादा पॉसिबल हो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बी एबल. होप एक्सरसाइज 1 इज़ क्लियर टू यू. नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज नंबर 2. नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 2. हियर वी हैव टू फिल द ब्लैंक विद शुड, ought to and must according to the suggestion in the brackets. ब्रैकेट के अंदर हमें सजेशंस गिवन है. हमने लास्ट वीडियो में किया था कि शुड हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पर हमें मोर में सजेशन देना है या किसी को एडवाइस देनी है, और मस्ट हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन या कंपल्शन हो, वहाँ पर हम मस्ट लगाएंगे. और ought to हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें मॉरल ड्यूटी की सेंस देनी है कि ये हमारा मॉरल ड्यूटी, हमें ये काम करना चाहिए, वहाँ पर हम ought to यूज़ करेंगे. नाउ फर्स्ट इज ही डैश लुक आफ्टर हिज पेरेंट्स. इट्स मॉरल ड्यूटी. मॉरल ड्यूटी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? शुड. नॉट शुड, वी विल यूज़ मॉरल ड्यूटी के लिए ought to. ही ought to look after his parents. द फर्स्ट ब्लैंक fill with ought to. He ought to look after his parents. Second is you dash read newspaper daily to improve your vocabulary. It's an only suggestion. Suggestion के लिए हम यूज़ करते हैं should. You should read newspaper daily to improve your vocabulary. Third is you dash submit the form before the last date of May. It's compulsion. कंपल्शन होगी तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे मस्ट. यू मस्ट सबमिट योर फॉर्म बिफोर द लास्ट वीक ऑफ मई. नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट डैश मेक एफर्ट्स टुवर्ड ब्रिंगिंग द इकोनॉमिक डिवाइड. इट्स नेसेसिटी. जब नेसेसिटी होगी तो हम यूज़ करेंगे जहाँ पे नेसेसिटी मतलब कंपल्शन हो गई जो चीज़, वहाँ पर हम मस्ट यूज़ करते हैं. द गवर्नमेंट मस्ट मेक एफर्ट्स. नेक्स्ट है वी डैश पे टैक्सेस ऑन टाइम. इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी एज सिटीजन ऑफ द कंट्री. अगेन मॉरल ड्यूटी के लिए हम यूज़ करेंगे ought to. आपको एग्ज़ाम में भी इसी तरह से ब्रैकेट्स के अंदर सजेशंस गिवन होंगे, आपने उसके अकॉर्डिंग ही ब्लैंक्स को फिल करना है. तो जो ब्लैंक्स फिल कर रहे हैं, इसके जो ब्रैकेट्स में हेल्प गिवन है उसको केयरफुली रीड करना, उसके बाद हम उसको फिल करेंगे. नेक्स्ट है यू डैश ज्वाइन योगा क्लासेस टू इम्प्रूव योर एबिलिटी टू कंसनट्रेट. इसमें सजेशन है. सजेशन होगा तो हम क्या करेंगे? यूज़ शुड. You should join yoga classes to improve your ability to concentrate. Concentrate मतलब एकाग्रता, एक मतलब ध्यान लगाकर काम करने के लिए आपको योगा क्लास ज्वाइन करनी चाहिए. नंबर 7 you dash do something for the unprivileged. unprivileged होते हैं जो गरीब लोग हैं, मतलब जो अपेक्षित लोग जिनकी कोई केयर नहीं करता, वो हो गए अनप्रिविलाइज्ड, जिनके पास कोई साधन नहीं है. इसके लिए हम मॉरल ड्यूटी यूज़ कर रहे हैं. मॉरल ड्यूटी के लिए हम फिल करेंगे ought to. नाउ 8th sentence. Since the train is yet to come. Since the train is yet to come,
वी डैश टेक अ वॉक अराउंड द एरिया, सिचुएशन वो कह रहे कि हालांकि हमें पता है कि ट्रेन आने वाली है, वी डैश टेक अ वॉक अराउंड द एरिया, सजेशन है, सजेशन के लिए हम फिल करेंगे शुड, कि ट्रेन आने वाली है, फिर भी हम जो एरिया आसपास का एरिया वहाँ पर एक चक्कर लगा सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ ट्रेन आने वाली है, आई नहीं है। नंबर 9, यू डैश फिनिश योर वर्क बाय टुडे, इट्स कंपल्शन, कंपल्शन के लिए हम यूज़ करते हैं मस्ट, यू मस्ट फिनिश योर वर्क बाय टुडे। नंबर 10, हैविंग अ प्ले ग्राउंड इन एवरी लोकेलिटी इज़ आ डैश, ऑप्शन में है नेसेसिटी, नेसेसिटी के लिए मतलब कंपल्शन, तो यहाँ पर आएगा इज मस्ट, हैविंग अ प्ले ग्राउंड इन एवरी लोकेलिटी इज अ मस्ट। सो दिस वन इज ऑल अबाउट एडवाइस, सजेशन एंड ऑब्लिगेशंस। वंस अगेन आई रिपीट, शुड हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें सिर्फ सजेशन गिवन है या एडवाइस देनी है किसी को, और तो हम यूज़ करते हैं जहाँ पर मॉरल ड्यूटी या मॉरल ड्यूटी की सेंस को कन्वे करना है, मतलब हमें उनको ये बताना है, मॉरल ड्यूटी देनी है कि ये आपका नैतिक आपकी मॉरल ड्यूटी है, और जहाँ पे एक नेसेसिटी या कंपल्शन आएगी वहाँ पर हम यूज़ करेंगे मस्ट। सो दिस वन इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज नंबर 2 ऑफ लेसन नंबर 11। लेट्स मूव टू एक्सरसाइज नंबर 3। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 3, सी पार्ट ऑफ लेसन नंबर 11। In this exercise, we have to choose the correct option. 3 options are there in every sentence. We have to tick the right option. But before starting this, I want to explain something about this exercise. This exercise is related with the permission. When we have to take a formal permission, we use may, and when we have to take an informal, we use can. And if any permission that belongs to past, और पास्ट परमिशन वी यूज़ कुड, राइट। फॉर्मल परमिशन के लिए हम मे यूज़ करेंगे, इनफॉर्मल के लिए हम कैन यूज़ करेंगे, और जो परमिशन पास्ट में ली गई है, परमिशन इन द पास्ट, देयर वी विल यूज़ कुड। नाउ लेट्स स्टार्ट। द रिसेप्शनिस्ट टोल्ड मी दैट आई कैन, कुड, मे मेक अ कॉल फ्रॉम द टेलीफोन एट द रिसेप्शन। इसके एग्जाम ऑप्शन गिवन है आपको, परमिशन इन द पास्ट, अंडरस्टूड है, पास्ट की बात हो रही है तो हम यहाँ पर कैन, कुड और मे में से कुड को टिक करेंगे, कुड इज द राइट ऑप्शन। सेकेंड इज आई कांट फाइंड माई ब्लू पेन, जॉनी, कैन, कुड, मे, आई बोरो योर्स, इनफॉर्मल परमिशन। अब वो कह रहे कि आई कांट फाइंड माई ब्लू पेन, मुझे अपना ब्लू पेन नहीं मिल रहा, जॉनी, कैन, कुड एंड मे आई बोरो योर्स, ऑप्शन ब्रैकेट में इनफॉर्मल, तो हम यहाँ पर इनफॉर्मल के लिए क्या यूज़ करेंगे, कैन। थर्ड सेंटेंस, स्टूडेंट्स कैन, कुड, मे स्टडी इन द लाइब्रेरी ऑन संडेज, सेट द प्रिंसिपल, ऑप्शन है फॉर्मल। I repeat, students can, could, may study in the library on Sundays, said the principal. ऑप्शन में फॉर्मल, एक फॉर्मल परमिशन दी गई है तो यहाँ पर हम किसको टिक करेंगे, मे को, राइट। फोर्थ सेंटेंस, यू कैन, कुड, मे टेक माई पेन डियर ब्रदर, इनफॉर्मल परमिशन है यहाँ पर भी, तो हेयर वी फिल द ब्लैंक विद द can. Okay. Fifth sentence, you can, could, may leave now, said the boss to his employees, formal permission, या फिर formal order है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे may। Now sixth sentence, he said that I can, could, may join the team on that day itself, permission in the past। अब पास्ट में है तो हम यहाँ पर हम could को टिक करेंगे, सेवेंथ सेंटेंस,
कैन कुड मे आई हैव सम स्नैक्स मदर, इनफॉर्मल है यहाँ पर हम कैन को टिक लगाएंगे। नंबर 8, सर कैन कुड मे आई कम इन, इट्स फॉर्मल सर, तो यहाँ पर हम मे। नंबर 9, कैन कुड मे आई यूज़ योर टेलीफोन, वेरी पोलाइट, अब पोलाइटली यूज़ करें तो हम यहाँ पर हम कुड आई यूज़ योर टेलीफोन, इसमें आप मे भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। हम यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम मे भी यूज़ कर सकते हैं और कुड भी यूज़ कर सकते हैं। कैन कुड मे आई पे द टिकट फेयर, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल के लिए हमारा एक ही वर्ड था कैन, राइट। सो दिस वन इज़ ऑल अबाउट द permissions. Once again look at sentence number 9. Can could may I use your telephone, polite है but last में question mark लगा हुआ है तो it's not a request, he is asking, he is taking permission, so we will fill the blank with the may, not could. Okay, इसको correct कर लेना बेटा कि sentence number 9 में हम may use करेंगे। So this one is all about the permission, ability, suggestion and advice. In the next video, we will discuss our rest exercise. Till then, stay home, stay safe. Thank you. Have a nice day. Goodbye.